Hi guys, so welcome to lecture 9 of economic crash course. So before starting this economic lecture, I would like to introduce you to the free crash course which is organized by the Prep IAS. It's a 3-month free crash course for UPSC Prelims 2021, which is on 27th June, Sunday, right? So this course basically started on the 17th March and will be ended on 20th March, 20th June, sorry. And after that, you will be having five high quality full length mock test. Along with this, in this course, we are covering the comprehensive coverage for prelims. Apart from this, apart from static portion, we will be covering dynamic current affairs as well. These current affairs are more than enough for UPSC CSC prelims exam, right? Then you can also find the study material after every lecture on the Telegram channel of Prep IAS. After that, we have doubt clearing session on every Sunday, where faculties try to get more deeper into the topics to solve the basically queries of the beginners who want to understand that topic in some more details, right? And then we have some CSAT classes also taken by Himanshu Gajendra. So I hope you guys are getting benefited from this crash course. We have already started it and we have already covered 8 lectures of economy, and today we are going to start our lecture 9, that is government budgeting part 3, right? Before that we have already covered part 7, lecture 7 and lecture 8, in which we have covered government budgeting part 1 and part 2, right? So kuch in the whole topic of government budgeting, most of the topic have already been covered, but considering the last few years questions, so what I have decided, that I will be telling you some of the important recommendations of important committees, because if you see in 2017 paper, there was a question based on the recommendation. Statement wise question was there. I will not leave these committees as well, so I hope you guys will make notes. There are more than 50 recommendations, but what recommendations I am telling you is more than enough for the prelims point of view, राइट? पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कौन कौन से रिकमेंडेशन हमारे सरकार के द्वारा मानी जा रही है और कौन सी रिकमेंडेशन हमारी सरकार के द्वारा मानी नहीं जा रही है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर से। सो फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर 2 में भी पूछा था कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन का चेयरमैन कौन है, सो इट इज बिमल जलान, राइट? उनके कुछ रिकमेंडेशंस मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, आप लोगों को अच्छे से फॉलो करनी है, ठीक है? रिकमेंडेशन जो सबसे पहले इन्होंने रिकमेंडेशन दी है ना, वो दी है कि जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें उसको रिड्यूस करो, उसको क्या करो, रिड्यूस करो, ठीक है? अब मेरे को आप लोग बताओ, ये वाला जो पोर्शन है एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट? जो एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो हमने चार्ट पढ़ा था, कौन से एक्सपेंडिचर के नीचे आएगा? वेदर इट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आएगा, राइट? देन उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि जो ये प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है ना, इसको अबॉलिश कर दो। क्या कर दो? इसको अबॉलिश कर दो, ठीक है? तो ये भी रिकमेंडेशन मानी जा चुकी है, ये भी रिकमेंडेशन मानी जा चुकी है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है? ये मैं आपसे ऑलरेडी लेक्चर नंबर 8 में, यानी जो गवर्नमेंट बजटिंग का पार्ट 2 था, उसमें ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्शन थी प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में, इसको खत्म किया जाए, और ये भी आपकी सिफारिश मान ली गई है सरकार के द्वारा, राइट? देन नेक्स्ट आता है आपका रेशनलाइजेशन एंड मर्जर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। बेसिकली जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स रहती है ना, उसमें 2 पार्ट आते हैं आपके, राइट? इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ग्रांट, एक होता है लोन, राइट?
तो जो हमारी नॉर्मल स्टेट्स हैं, उसमें जो ग्रांट रहता है वो 30% रहता है और जो लोन रहता है 70% रहता है। वाइल जो हमारी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें ये रेशियो 90:10 का रहता है। ठीक है, तो इस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि ये जो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, एक तो इनका नंबर रिड्यूस करो। नंबर कैसे रिड्यूस करोगे? इनको मर्ज करके। ठीक है, सेकेंडली इनको रेशनलाइज करो कि कौन सी स्कीम की नीड है, कौन सी स्कीम की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन भी माना जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, जो हमने पॉइंट ए डिस्कस करा एक्सपेंडिचर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या हम बोल सकते हैं जो इनकम टैक्स में अभी आपका फेसलेस असेसमेंट सिस्टम आया है, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, क्या वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपेंडिचर कम करेगा? करेगा तो हाउ? कमेंट करके बताओ जल्दी से। जो इनकम टैक्स में रिसेंटली फेसलेस असेसमेंट सिस्टम आया है, क्या वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंडिचर कम करेगा? और अगर करेगा तो कैसे करेगा, ये कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि डीबीटी। डीबीटी, व्हाट इज डीबीटी? डीबीटी इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, राइट। सो इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सभी गवर्नमेंट सब्सिडीज के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस एज पेमेंट बैंक्स। पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक्स की तरह लॉन्च किया जाए। पेमेंट बैंक्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, पेमेंट बैंक्स और स्पेशल कैटेगरी बैंक्स मैंने आप लोगों को बताए थे। स्पेशलाइज्ड बैंक्स मैंने आपको, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, लेक्चर नंबर 7, तो मैंने आपको पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बताए थे, राइट। जब हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा था तब मैंने आपको ये बताया था पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही ये वाली, देखो ये डीबीटी वाली स्कीम भी मान ली गई ना, जैसे कि आपकी पहल स्कीम हो गई, पहल पहल सब्सिडी। अब मेरे को बताओ पहल किसके लिए है? पहल सब्सिडी किस स्कीम के तहत दी जाती है, उसका क्या पर्पस है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये सब चीजें देखो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप जून 27 जून को प्रीलिम्स में अपियर हो रहे हो तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए ये सब चीजें आप लोगों को खुद कमेंट करने को देता हूँ, ताकि जब आप इसको गूगल करोगे तो आपको रिलेटेड स्कीम्स 2-3 और लिस्ट में दिखाई देंगी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू उज्ज्वला स्कीम। नाउ आप लोग मेरे को बताओगे ये उज्ज्वला स्कीम क्या है आपकी, ठीक है, और पहल स्कीम क्या है आपकी, और ये आपस में कैसे रिलेटेड है, इनका क्या पर्पस है, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, देखो जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा सुनोगे। ऐसी प्रवचन की तरह लेक्चर सुनते रहोगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो नाउ मूविंग ऑन टू पोस्ट ऑफिस। जब हम पोस्ट ऑफिस की बात करेंगे तो पोस्ट ऑफिस एज पेमेंट बैंक्स को लॉन्च किया जाए। इसका एग्जांपल आप लोग दो मेरे को। क्या आईपीपीबी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, क्या वो इसका एग्जांपल है? क्या वो इसके तहत हम कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड पेंडिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू अदर। मतलब इन्होंने बोला कि जो अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में अगर एजुकेशन सेक्टर को 90,000 करोड़ दिए गए हैं, पर वो इस साल सिर्फ 56,000 करोड़ ही खर्च कर पाई है, तो ये जो बचा है ना 90,000 माइनस 56,000, दैट इज समवेयर 34,000। ठीक है, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना किए जाएं, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए। ठीक है, इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। देन उसके बाद इन्होंने बोला शिफ्ट फ्रॉम कैश बेस्ड अकाउंटिंग टू एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, राइट। ये थोड़ा सा आप लोग समझ लो, व्हाट इज कैश बेस्ड अकाउंटिंग एंड व्हाट इज एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। जो भी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा, जो नहीं है उनको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, अब जो ये आपका एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग होता है ना, ये क्या होता है ध्यान से सुनना। इसको बहुत बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डीप में मत जाना, सिर्फ मीनिंग समझ लो इसका। ठीक है,
इसके तहत क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन जिस डेट को हुआ है वो उसी डेट को रिकॉर्ड किया जाए, ना कि जब उसका पेमेंट होगा तब। फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आप लोगों को। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है कि जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को उसी डेट पे अकाउंट्स बुक में नोट किया जाना चाहिए, ना कि उस ट्रांजैक्शन का जो पेमेंट है वो किस डेट को हुआ है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, एक एबीसी कंपनी है, राइट। एबीसी कंपनी, इसका एक क्लाइंट है, इसका एक क्लाइंट है राम, ठीक है। राम ने एबीसी कंपनी से सर्विस ली, यानी एबीसी कंपनी ने राम को सर्विस प्रोवाइड करी आपका 10 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर को। और जो बिल जनरेट हुआ वो भी 10 अक्टूबर का हुआ। बिल जनरेट जब हुआ वो 10 अक्टूबर को हुआ, राम का बिल बना 25,000 रुपए का। 10 अक्टूबर को जो बिल जनरेट हुआ 25,000 रुपए का बिल बना। अब जिस डेट पे बिल जनरेट हुआ है वो ही आपकी ट्रांजैक्शन डेट मानी जाएगी, राइट। दिस विल बी द ट्रांजैक्शन डेट। अब राम ने इसको 15 नवंबर को पे किया, 15 नवंबर को, यानी 10 अक्टूबर को सर्विस प्रोवाइड कर दी गई, बिल जनरेट हो गया। उसके बाद राम ने इसको 15 नवंबर को पे किया, ठीक है। तो अब कैश बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन डेट है वो 15 नवंबर की मानी जाएगी, और एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग में इट विल बी द 10 अक्टूबर। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली होती है कि जिस डेट को बिल जनरेट हुआ या जिस डेट को सर्विस प्रोवाइड की गई है वो ही ट्रांजैक्शन डेट मानी जाएगी, ना कि जिस डेट को पेमेंट हुआ है वो ट्रांजैक्शन डेट नहीं होगी, ठीक है। वो आपका कैश बेस्ड अकाउंटिंग में होता है। किसमें होता है वो आपका, कैश बेस्ड अकाउंटिंग में होता है वो, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो इसमें बेटर क्या होना है, इसमें बेटर अकाउंटिंग कर पाते हैं, बेटर अकाउंटिंग कर पाते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट को मैच कर पाते हैं, डेबिट क्रेडिट को आप मैच कर पाओगे, ठीक है। और इसके बेनिफिट होता है कि लीकेज कम होती है, लीकेज कम होती है मतलब बेटर अकाउंट, बेटर ट्रांसपेरेंसी होती है, बेटर ट्रांसपेरेंसी होती है, बेटर ट्रांसपेरेंसी मतलब बेटर अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट, बेटर अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इस वजह से हम एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हैं, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए इस कमेटी ने बोला आपका, राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया है। देन उसके बाद आता है गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला। गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला बेसिकली 1991 में ये हुआ था, ये 1991 में प्रपोज किया गया था, जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, ठीक है। उनके साथ जो गडजिल थे उन्होंने मिलकर फॉर्मूला बनाया था। ये बेसिकली जो फॉर्मूला है 8th से 12th प्लान तक फॉलो किया गया था, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर 5, फाइनेंशियल ईयर मतलब जो हमारे 5 ईयर प्लान आते थे ना, उसके लिए 5 ईयर प्लान के लिए, राइट। देन जो इसमें वेटेज डिसाइड किया गया था वो ये किया गया था, पॉपुलेशन का वेटेज रहेगा 60%, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई इज योर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम वो रहेगा 25%, परफॉर्मेंस रहेगी आपकी 7.5%, और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम होगी तो वो 7.5% का उसको वेटेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। गडजिल फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड था, गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है उस पे आधारित था, और इनका जो वेटेज रखा गया था वो रखा गया था, पॉपुलेशन 60%, पर कैपिटा इनकम 25%, परफॉर्मेंस 7.5%, एंड कुछ स्पेशल अगर अदर प्रॉब्लम कंसीडर करेंगे उसको 7.5% का वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, मैंने आप लोगों से कमेंट में क्वेश्चन भी पूछा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत कम लोगों का, बच्चों का उस पर आंसर आया था, बट जिनका नहीं आया था वो आप समझ लो। पहला कंडीशन होता है हिली या डिफिकल्ट टेरेन की हो, मतलब जैसे आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हिमाचल, ठीक है, ये सारी स्टेट्स हो गई जहाँ पे हिली टेरेन है या डिफिकल्ट टेरेन है। देन साइजेबल पॉपुलेशन और लो पॉपुलेशन डेंसिटी। आप लोग बताओ विच स्टेट हैज लोवेस्ट
पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, कौन सी स्टेट की लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। देन स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जैसे कि आपके ये हो गए नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, वो हो गए आपके जम्मू कश्मीर हो गया जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। लद्दाख हो गया आपका जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देन नॉन साइजेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस, मतलब जो आपका स्टेट फाइनेंस है वो काफी कम है, जो स्टेट फाइनेंस है वो काफी कम है। देन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। ठीक है, ये पांच क्राइटेरिया को इन पांच कैटेगरी को कंसीडर करके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को डिसाइड किया जाता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का कंसेप्ट है, ये बेसिकली 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन था उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारा 1969 में? इट वाज इंदिरा गांधी। जो वो थी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर, वो बनी थी इंदिरा गांधी। ठीक है, देन जब जब भी आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि अपना ओपिनियन दो, क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होनी क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब आप रघुराम राजन कमेटी का जिक्र जरूर करना। ठीक है, देखो जब भी आपसे मेंस में कहीं भी आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना कि क्या बोलते हैं इसको कि आपके ओपिनियन में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आप लोगों का ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर के रेफरेंस में देना होगा। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे कि आप अगर बोलना चाहो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते बिकॉज आई थिंक इज अ रॉन्ग वर्ड। एज पर रघुराम राजन कमेटी, गवर्नमेंट शुड अबॉलिश द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्टेटस। ठीक है, ऐसे करके आप रिकमेंडेशन दोगे। तो पहला रिकमेंडेशन इनका ये था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को स्टेटस को अबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, देन क्योंकि इन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस पे जोर दो, तभी तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा, राइट। और जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी तो बढ़ेगा ना आपका, राइट, बढ़ेगा ना। जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ेगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा आपका। तो इसलिए इन्होंने बोला कि जो भी आपका फंड ट्रांसफर रहेगा वो बैकवर्डनेस के बेसिस पे होना चाहिए, और जो बैकवर्डनेस होगी वो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के बेसिस पे होना चाहिए, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें बेसिकली 10 इंडिकेटर्स होते हैं, 10 इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एजुकेशन की कैटेगरी में आते हैं, राइट। एजुकेशन हो गया, देन हेल्थ हो गया, देन आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो गया लाइक एसेट्स कितने हैं आपके पास, फ्लोर एरिया कितना है आपके पास, देन आपके पास सैनिटेशन कैसा है आपके यहाँ, सैनिटेशन कैसा है, देन आपका ये हो गया आपका ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। तो इन सब आधार पे आप लोग बैकवर्डनेस को मेजर करो और उस बेसिस पे ही फंड ट्रांसफर होने चाहिए। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो ये दिया कि परफॉर्मेंस पे 75% जाना चाहिए, बैकवर्डनेस पे 25% और अदर्स पे 0.3% का आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये आप तो समझ गए आपको रघुराम राजन कमेटी। देन यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आया था, कमेंट भी आया था कि सर एफआरबीएम का जो लेटेस्ट अपडेशन है ना वो बता दो एक बार। हालांकि ये काम मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया और रिक्वेस्ट आई तो मैं आप लोगों के लिए ये लेके आया हूँ। ठीक है, देखो मई 2016 में ना गवर्नमेंट ने एनके सिंह के अंडर में बेसिकली एफआरबीएम एक्ट, ठीक है, ये नोट्स में है, नोट्स में भी अपडेटेड है। अगर नोट्स में नहीं है, नोट्स में नहीं मिल रहा है तो आप इसको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पीपीटी में डाल दी है, यहाँ से आप कॉपी कर लेना उसको। ठीक है, वैसे नोट्स में अपडेटेड है, आई एम श्योर। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टारगेट, कमिटी ने रिकमेंड किया। देखो जो पहला एफआरबीएम आया था वो 2003 में आया था आपका, 2003 में आया था। उसके रिकमेंडेशंस को 2009 तक फॉलो करना था, यानी पूरा करना था। बट क्या हुआ था 2008-9 के बाद से ना, 2008-9 के बाद से ग्लोबल क्राइसिस चल गए थे। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे आपको। ठीक, जब आपका वो कौन सा बैंक था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बैंक का, यूएस का एक बैंक था बेसिकली,
मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा उसका नाम, आप लोग एक बार देख लेना, मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। वो बेसिकली बैंकरप्ट हो गया था, यानी वो पूरा का पूरा आपका बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से वो पूरा का पूरा ब्रदर्स करके कुछ नाम था उसका, मुझे बिल्कुल एक नाम याद नहीं आ रहा, कुछ ब्रदर्स करके नाम था, मैं कमेंट कर दूंगा, आप लोगों को पता होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से हम अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को स्किप कर गए थे। तो मई 2016 में गवर्नमेंट ने फिर से सेटअप किया कि एफआरबीएम जो एक्ट आया था हमारा 2003 में, उसको फिर से रिव्यू किया जाए। ठीक है, तो उसी रिकमेंडेशन के तहत एनके सिंह कमेटी ने कुछ रिकमेंड किया और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड टारगेट अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ द जीडीपी इन ईयर्स अप टू मार्च 31 2020। ठीक है, जबकि ऐसा हो नहीं पाया। करंटली इट इज अराउंड 3.4% के आसपास है। अब ये कोरोना पैंडेमिक आ गया था, कोरोना पैंडेमिक आ गया था आपका, तो इसमें बेसिकली फिस्कल डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, मार्च 31 2020 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 तक, यानी आप यानी आज की डेट तक, टुडेज डेट, आज की डेट तक, टुडेज डेट तक जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 3% हो जाना चाहिए। और 2023 तक, यानी 31 मार्च 2023 तक इट शुड बी 2.5%। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखना। बट ये ऐसा है नहीं हमारा अभी तक, अभी तो जब एक्चुअल आप फिस्कल डेफिसिट देखोगे तो 3.5 से भी ऊपर है। ठीक है, नाउ द कमिटी सजेस्टेड डेप्ट एज द प्राइमरी टारगेट फॉर द फिस्कल पॉलिसी। इन्होंने बोला कि मेन चीज जो हमारी गवर्नमेंट डेप्ट है ना, उसको रिड्यूस करना है। इस पूरी पॉलिसी का जो मेन प्राइमरी टारगेट है वो ये है कि गवर्नमेंट डेप्ट को रिड्यूस करना। ठीक है, ये 2017 में ना जो रेशियो रहा था वो 70% रहा था। ठीक है, अभी तो आके कुछ 59% के आसपास आ गया है। तो क्या क्या टारगेट सेट्स करे गए थे, पहला टारगेट था डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, मतलब जो गवर्नमेंट की डेप्ट है, जो गवर्नमेंट की डेप्ट है यानी जो उनकी उधारी है, ठीक है, वो जीडीपी का कितना परसेंटेज है, ठीक है, वो हमें मेजर करना है। यानी द रिव्यू कमेटी एडवोकेटेड फॉर अ डेप्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60%। इसके ऊपर प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी 2017 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सर्वे, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। क्वेश्चन आया था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट था आपका कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की डेप्ट है इट इज अबव 60%, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की डेप्ट है दैट इज अबव 45%। ठीक है, देन दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ठीक है, तो जो 60% है वो कंबाइंड है, 40 प्लस 20% का चलता है। 40% इज फॉर द सेंटर एंड 20% इज फॉर द स्टेट्स, राइट। देन रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट, ये मैंने आपको जो बताया दोनों रॉन्ग है, ये आपके करंट पर्सपेक्टिव में बताया है मैंने आप लोगों को, करंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैंने आप लोगों को ये बताया है। ठीक, देन नेक्स्ट आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट मतलब रेवेन्यू डेफिसिट शुड बी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, दोबारा से नहीं बताऊंगा, जिसने नहीं देखा पुरानी वीडियो देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये रेवेन्यू डेफिसिट वगैरह। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब फिर भी बता ही देता हूँ, चलो फिर आप बोलोगे नहीं तो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है आपका एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स। मतलब जब एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट से ज्यादा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होगा, then that condition will known as the revenue deficit target. Revenue deficit should be reduced to 0.8% of GDP by 31 मार्च 2023 तक। इसको 0.8% को रिड्यूस करना है। आप लोग मेरे को बताओ why it is important to reduce the revenue deficit, why it is important to reduce the revenue deficit, आप लोग मेरे को ये बताओ कमेंट करके। देन द मिनिमल, उसके साथ साथ 2023 तक जो आपका हर साल रिडक्शन होना चाहिए वो 0.5% का होना चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का अगर मैं आपको करंट डेटा बताऊं तो इस वक्त लगभग कुछ 2.8% के आसपास है। ठीक है, लगभग कुछ 2.8% के आसपास है करंटली। अगर मैं आपको अभी बताऊं तो कुछ लगभग करंटली रेवेन्यू डेफिसिट 2.8% के आसपास है। ठीक है, देन फिस्कल डेफिसिट टारगेट शुड बी रिड्यूस टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय मार्च 31 2023। ठीक है, द मिनिमम एनुअल रिडक्शन टारगेट
एनुअल रिडक्शन टारगेट रखा गया है 0.3%। ये सारे टारगेट्स आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट एनुअली शुड बी 0.5%, फिजिकल डेफिसिट टारगेट एनुअली शुड बी 0.3%। ठीक है। देन इसके साथ साथ सरकार ने एफआरबीएम में एक्ट में यानी एनके सिंह कमेटी ने एक एस्केप क्लॉज भी रखा है। राइट, एस्केप क्लॉज का मतलब होता है ये वो सिचुएशन है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उससे डेविएट हो सकती है अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एस्केप क्लॉज किस चीज से रिलेटेड है। ये बेसिकली एफआरबीएम एक्ट के साथ रिलेटेड है और इसका मतलब यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि इन केस ऑफ सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट जो हमारा फिजिकल डेफिसिट टारगेट है उससे उससे डेविएट हो सकती है। ठीक है। और 2017 में जो हमारे प्रीवियस एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेट श्री अरुण जेटली, उन्होंने फिजिकल डेफिसिट टारगेट को 3% से हटा के 3.2% कर दिया गया था। और अगर आप लोग को याद होगा तो इस टाइम कैग ने एक रिपोर्ट भी इशू करी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि ये जो टारगेट इंक्रीज किया गया है ना, ये एस्केप क्लॉज को आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हो। आपको इस एफआरबीएम एक्ट में आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उस अमेंडमेंट के बाद ही आप ये टारगेट चेंज कर सकते हो, क्योंकि अमेंडमेंट का प्रोसीजर में जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं किसी भी कानून में तो उसमें दोनों हाउसेस का बोथ हाउसेस का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है। बोथ हाउसेस का पार्टिसिपेशन जब इन्वॉल्व होता है तो इसके मतलब उसके अंदर अपोजिशन पार्टी भी आ जाती है। ठीक है। तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो कि आप एस्केप क्लॉज का यूज करो और आपने 3.2% कर दिया। नहीं, कैग ने साफ साफ बोला था कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपको एक्ट को अमेंड करके ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। 2018 में एफआरबीएम को फिर से अमेंड किया गया और इसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया कि आप एफआरबीएम को 0.5% से इंक्रीज कर सकते हो। माइनस तो खैर कोई नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें 0.5% का रेशनलाइजेशन प्रिंसिपल डाला गया। ठीक है। इफ द इज ट्रिगर्ड the RBI is then, this is point is again very important, ये पॉइंट समझ लो। अगर एस्केप क्लॉज को गवर्नमेंट को अलाउ करने दिया तो इसका मतलब क्या है भाई, आरबीआई इज डायरेक्टली अलाउड टू पार्टिसिपेट इन प्राइमरी ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यानी इसके वजह से इसका मतलब क्या है, जो हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग पढ़ी थी जिसको हमने बोला था कि अब खत्म हो गई है, उसकी जगह वेज एंड मींस एडवांसेस का सिस्टम आ गया है। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इस पॉइंट से पहले ना प्लीज वो वीडियो जरूर देख लेना। वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है, वो हमारा लेक्चर 7 में आपको मिल जाएगा ये सब। ठीक है, लेक्चर 7 में आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। उसके बाद ही आप इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करना। और जिसने लेक्चर 7 अच्छे से समझ लिया है वो प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से समझा दूंगा। अगर एस्केप क्लॉज ट्रिगर हो गया मतलब फिजिकल डेफिसिट टारगेट से हट सकती है, then RBI is then allowed to participate directly in the primary auction of the government bonds। यानी जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं उसमें आरबीआई पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी अब आरबीआई तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रही है ना। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब अगर बॉन्ड 10,000 करोड़ का है तो आरबीआई क्या करेगी, इस वाले बॉन्ड को खरीद लेगी। गवर्नमेंट क्या देगी, इसको बॉन्ड देगी और आरबीआई रिटर्न क्या देगा, 10,000 करोड़ देगा। तो इसका मतलब क्या है, आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है तो इसका मतलब क्या है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हो रही है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हो रही है और जब प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी होती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता प्लीज एक बार जाके लेक्चर 7 जरूर देख लेना। ठीक है। देन एस्केप क्लॉज कब कब हो सकता है, बाय द गवर्नमेंट आफ्टर फॉर्मल कंसल्टेशन एंड एडवाइस ऑफ द फिस्कल काउंसिल। ठीक है। हालांकि ये फिस्कल काउंसिल अभी तक सेटअप नहीं की गई है, ये फिस्कल काउंसिल अभी तक सेटअप नहीं की गई है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये एक रिकमेंडेशन है। ठीक है। विद द क्लियर कमिटमेंट टू रिटर्न टू द ओरिजिनल फिस्कल टारगेट इन द कमिंग फिस्कल ईयर। यानी ये दोनों कंडीशन गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ेंगी अगर उसको एस्केप क्लॉज को आपका ट्रिगर करना है तो। ठीक है। प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन ऑफ द टारगेट, रिवाइज द फिस्कल डेफिसिट टू 3.8% एंड पेग्ड
टू 3.5%। ये 2020 में आप लोगों को अभी लेटेस्ट अपडेट पता भी होगा कि निर्मला सीतारमण ने ये एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल किया था और फिस्कल डेफिसिट टारगेट को इंक्रीज करके 3.8% पहुंचा दिया था, और फिस्कल टारगेट जो रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2021 का वो 3.5% रखा गया था। ठीक है, दूसरा है आपका, इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट कब कब एफआरबीएम एक्ट से छुटकारा पा सकती है, मतलब कब कब जो भी एफआरबीएम के टारगेट्स हैं उनको कब कब उनसे कब कब डेविएट हो सकती है, वो हो सकती है इन केस ऑफ वॉर और कैलेमिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसमें भी आपका गवर्नमेंट को एफआरबीएम गाइडलाइंस को फॉलो करने की नीड नहीं है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स आप लोग बिल्कुल याद रखना। डेट टू जीडीपी रेशियो, रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या टारगेट क्या है, देन आपका ये एस्केप क्लॉज क्या है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एस्केप क्लॉज क्या है, ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना। 2020 में भी इसको इस्तेमाल किया गया है एंड 2017 में भी अरुण जेटली ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद कैग ने क्या रिकमेंडेशन दी थी अपनी, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये एफआरबीएम 2003 में आया था, मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया है इसमें। ठीक है, तो फ्रॉम नाउ गवर्नमेंट बजटिंग पार्ट इज कंप्लीट। सो 3 पार्ट हमने गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो इन दिस लेक्चर मैंने गवर्नमेंट बजटिंग का पार्ट आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, जो हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा वो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर आपके जो पीपीपी मॉडल्स होते हैं, पीपीपी मॉडल्स जो होते हैं, इसके साथ साथ विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन मैं आपको बताऊंगा, विजय केलकर कमेटी। ठीक है, देन उसके बाद लेक्चर 11 में हम लोग कवर करेंगे बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन, जिसमें हम देखेंगे पोर्ट्स, रेलवेज, हाईवेज वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, पाइपलाइन से ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हालांकि मैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर पहले लाना वाला था, आपको शेड्यूल में भी जब आप देखोगे ना प्रेप आईएएस के जो क्रैश कोर्स का शेड्यूल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पहले है और पीपीपी मॉडल्स बाद में है। तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस करके ना इस पूरे पॉइंट को रीअरेंज कर दिया है। पहले हम पीपीपी मॉडल्स पढ़ेंगे, उसके बाद विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन पर आएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्शन में हमारे को पीपीपी की नीड पड़ेगी। ठीक है, पीपीपी की जब नीड पड़ेगी तो उसमें पोर्ट्स, रेलवे, हाईवेज, पाइपलाइन पे डिस्कशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास पीपीपी मॉडल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को पीपीपी मॉडल समझाऊंगा, पहले विजय केलकर कमेटी रिकमेंडेशन बताऊंगा, उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा गूगल फॉर्म, उसमें आप डाल देना। इस संडे को हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, काफी सारे क्लॉजेस, काफी सारे डाउट्स डिस्कस किए थे। उसके अलावा भी अगर किसी के डाउट्स बच गए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को कंबाइन करके मैं कुछ 15 से 20 डाउट्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, जो कॉमन डाउट्स होते हैं उनको हटा के। तो अगर आपको लगता है कि आपका डाउट कुछ और था, मैंने कुछ और समझा, तो आप लोग उस डाउट को दोबारा से कमेंट कर देना, दोबारा से गूगल फॉर्म में डाल देना, मैं उसको दोबारा से देख लूंगा। मतलब जब सेम डाउट 2 बार आएगा तो इसका मतलब है कि मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम रही है, मतलब मैंने अंडरस्टैंडिंग नहीं करी उस डाउट की, तो मैं उस चीज को दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अपडेट कर देना उस गूगल फॉर्म को। और अभी भी इसमें कोई फॉर्मूला है, ये गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला वगैरह याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये डायरेक्टली पूछा जाएगा किस चीज से रिलेटेड है, ये गडजिल मुखर्जी फॉर्मूला किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सीख रहे हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली है हमारी अब आगे आने वाले टाइम में। और ऑल द बेस्ट, टाइम बहुत कम रह गया है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। थैंक यू एवरीवन।